Topic is constructor. What is constructor? Constructor is a special member function for automatic initialization of an object. When an object is created, the special member function, that is all the constructor, will be executed automatically. A constructor function is different from all other member functions in a class because it is used to initialize the variable. It is called constructor because it constructs the values of data members of the class. What are the rules for writing constructor function? First rule, constructor name must be the same as that of its class name. Second rule, it is declared with no return type. Third rule, it may not be static or virtual. And fourth rule, it should be public. These are the rules for writing constructor. The general format of constructor is class username. Username is the name of class. Private is the access specifier. Public is the access specifier. Username. This statement is used for to declare constructor. Curly bracket close with a semicolon means to close a class. Next statement, username, scope resolution operator, username. This statement is used for to define constructor. Now we consider example, employee is the name of class. In this class, we use three data members, name, e-code and address. Next statement is employee. This statement is used to declare constructor and the name of constructor is employee. Void get data. Get data is the member function of class employee. Void display. Display is the member function of class employee. Curly bracket close with a semicolon to close class employee. Next statement, employee scope resolution operator employee. This statement is used to define constructor. This is the example of constructor. Next, types of constructor. There are three types of constructor. First, default constructor. Second, parameterized constructor. And third, copy constructor. Now we discuss here first type, default constructor. Default constructor is also called empty constructor which has no argument. कंस्ट्रक्टर का जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही हम बोलेंगे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर. और एम्प्टी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है इट हैज़ नो आर्ग्यूमेंट, इट हैज़ नो पैरामीटर. उसका जनरल फॉर्मेट है क्लास, क्लास नेम, ओपनिंग करली ब्रैकेट, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर क्लोज, curly bracket close, class name, scope resolution operator, constructor name, opening curly bracket, statements and closing curly bracket. So this is the format of default constructor. Now we discuss one example. इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, iostream.h. सेकंड हेडर फाइल है conic.io.h. डेमो इज़ द नेम ऑफ क्लास और इस क्लास में हमने दो डेटा मेंबर्स यूज़ किए हैं, ए और बी, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. उसके बाद हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है डेमो. हमारा पहला रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर नेम इज़ द सेम एज अ क्लास नेम. तो यहाँ पे डेमो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यूज़ इनिशियलाइज किए हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20. और क्लास को हमने क्लोज किया है कर्ली ब्रैकेट से विथ सेमीकोलन. यहाँ पे हमारा क्लास ये क्लोज हो जाता है डेमो. नेक्स्ट वी यूज़ मेन फंक्शन वॉइड मेन. और सबसे पहले हम अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है डेमो सी सेमीकोलन. तो सी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड डेमो इज़ द नेम ऑफ क्लास. तो ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिया है
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसका ये मतलब होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है सी, ये क्या करेगा, डेमो ये जो कंस्ट्रक्टर है इस कंस्ट्रक्टर को ये कॉल्ड करेगा। जब ये कॉल्ड करेगा तो कौन से वैल्यूज़ आएंगे, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20। जो वैल्यू हमको यहाँ पे प्रिंट करना है उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सी डॉट ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू सी डॉट बी। तो यहाँ पे हमको आउटपुट जो दिखेगा वो आउटपुट इस तरह करेगा, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टर का टाइप है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। द कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ करेंगे, आर्ग्यूमेंट का यूज़ करेंगे, तो उस कंस्ट्रक्टर को हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसका जनरल फॉर्मेट है क्लास नेम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन विथ पैरामीटर्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर नेम विथ पैरामीटर्स ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट्स एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अभी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर? इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द वेरियस डेटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज व्हेन दे आर क्रिएटेड। ये उसका पहला यूज़ है। सेकंड है इट इज़ यूज टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। तो ये दो यूजेस के लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, iostream.h और konika.io.h। डेमो ही हमारा क्लास का नाम है और इस क्लास में हमने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं ए और बी और उसका डेटा टाइप है इंटीजर। अभी हमने डेमो इन ब्रैकेट int कॉमा int। अभी डेमो ये जो कंस्ट्रक्टर है दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स अप्लाई किए हैं int कॉमा int, तो हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, डेमो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद में वॉइड प्रिंट, तो प्रिंट इज द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास डेमो, तो ये एक उसका मेंबर फंक्शन है डेमो क्लास का। उसके बाद में क्लास को हमने क्लोज किया है क्लोजिंग करली ब्रैकेट से विथ सेमीकोलन। अभी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर। अभी हमको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है वॉइड डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डेमो इंटीजर a1 कॉमा इंटीजर b1। तो a1 और a2 ये दो हमारे पैरामीटर्स हैं। ओके, दो पैरामीटर्स हमने इस कंस्ट्रक्टर में सप्लाई किए हैं, यूज़ किए हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको ये जो हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे वैल्यूज़ को सप्लाई करना है और सप्लाई करने के बाद में उन वैल्यूज़ को भी हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ए इक्वल टू a1 बी इक्वल टू b1। यानी इस कंस्ट्रक्टर में इस कंस्ट्रक्टर को हम जब कॉल्ड करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू तो जो वैल्यूज़ है जो ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज़ देंगे वो वैल्यूज़ यहाँ पे सप्लाई हो गए और सप्लाई होने के बाद में इन वैल्यूज़ को भी हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए हमने यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन लिया है वॉइड प्रिंट। तो हम इस पार्ट को इस तरह से लिखेंगे वॉइड डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट। तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी हमको यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है जिसके लिए हम void main इसका यूज़ करेंगे। CLR फंक्शन इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, डेमो इज़ द नेम ऑफ क्लास, सी इज़ द ऑब्जेक्ट और इसमें हमने दो वैल्यूज़ लिए हैं 22 कॉमा 33। ओके, तो सी ऑब्जेक्ट किसको कॉल्ड करेगा, ये कॉल्ड करेगा इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डेमो इंटीजर a1 कॉमा इंटीजर b1, इसको ये कॉल्ड करेगा। तो इसको कॉल करने के बाद में a का वैल्यू यहाँ पे चले जाएगा और b का वैल्यू चले जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 22 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b 33। उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट है
वो स्टेटमेंट है सी डॉट प्रिंट। तो ये ऑब्जेक्ट अभी किसको कॉल करेगा? ये ऑब्जेक्ट कॉल करेगा इसको void demo scope resolution operator print. तो what is the use of this member function? This member function is used to print the value of a and b. तो यहाँ पे हमको इस तरह का इसका आउटपुट दिखेगा, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 22 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 33। तो इस तरह से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप है कॉपी कंस्ट्रक्टर। Copy constructor that initializes an object using values of another object passed to as a parameter is called copy constructor। तो हम ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ लेके और ऑब्जेक्ट के उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। इट क्रिएट्स द कॉपी ऑफ द पास्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी इसका यूज़ क्या होता है? इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप। सेकंड यूज होता है कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। एंड थर्ड होता है कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम अ फंक्शन। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज दिस थ्री थिंग्स। ओके, तो इसका जनरल फॉर्मेट होता है क्लास नेम, देन नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, constructor definition with parameters, curly bracket close, then class name, scope resolution operator, constructor name with parameters, opening curly bracket, statements and curly bracket close. So this is the general format of copy constructor. Copy constructor का ये एक general format है। तो अभी हम इसका यूज़ कैसे करते हो अभी हम देखेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, वही एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे विथ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं, iostream.h, नेक्स्ट conic.io.h, देन डेमो इज़ द नेम ऑफ क्लास। इसमें हमने दो डेटा मेंबर्स लिए हैं a एंड b, बोथ आर इंटीजर टाइप। फिर डेमो इन ब्रैकेट int, int। तो ये हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है डेमो नाम का, और वॉइड प्रिंट ये हमारा मेंबर फंक्शन है क्लास का डेमो। उसके बाद में क्लास को हमने क्लोज किया है विथ सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर को, वॉइड डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डेमो इन ब्रैकेट int a1 int b1, a इक्वल टू a1 b इक्वल टू b1। तो ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में वैल्यूज़ इस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद में वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, और सप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट हमको उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमने प्रिंट ए मेंबर फंक्शन यूज़ किया है। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, वॉइड डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट, देन टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। अभी हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, वॉइड मेन, देन clr टू क्लियर द स्क्रीन, डेमो सी इन ब्रैकेट 22, 33 एंड सेमीकोलन। तो सी इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। ये ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा? ये ऑब्जेक्ट कॉल्ड करेगा जहाँ पे हमने इस कंस्ट्रक्टर को डिफाइंड किया है। ओके, तो इसको कॉल करने के बाद में ये सब जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ यहाँ पे चले जाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर पे चले जाएंगे। ओके, जहाँ पे हमने उसको डिफाइन किए हैं और वैल्यूज़ हमने सप्लाई किए है 22 और 33। तो अभी ये वैल्यूज़ यहाँ पे सप्लाई हो गए, तो a इक्वल टू 22 और b इक्वल टू 33 हो गया। ओके, फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है डेमो c1 इक्वल टू c। तो c ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को अभी हमको कॉपी कहाँ पे करना है? c1 पे कॉपी करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखेगा c डॉट प्रिंट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को सबसे पहले प्रिंट कर देगा, a इक्वल टू 22 और b इक्वल टू 33। उसके बाद में हमको कॉपी करना है, मीन्स सी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है वो C1 ऑब्जेक्ट पे कॉपी करना है। तो हमने इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है डेमो C1 इक्वल टू सी। अभी हमको C1 में जो कॉपी हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ कॉपी हुए हैं उसको हमको प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए हमने यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन लिया है प्रिंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C1 डॉट प्रिंट। तो उसके बाद में हम इस मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है डेमो C1 इक्वल टू सी, दिस स्टेटमेंट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आउटपुट हमको इस तरह से दिखेगा, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 22, द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 33, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 22, द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 33। तो ये जो लास्ट टू लाइन्स हमको दिख रहे हैं
वो C1 डॉट प्रिंट यानी C1 ऑब्जेक्ट की ये वैल्यूज़ है। और पहले जो हमको फर्स्ट टू स्टेटमेंट दिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 22, द वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 33, ये है सी कंस्ट्रक्टर के वैल्यूज़। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे।